Let me start today's class then, and wonderful morning everyone once again, and please do the practice of CSS. uh, of course there will be questions on CSS in final exam also, along with pre-board. Okay, this time in pre-board this chapter is going to be included, that's why I'm saying you need to. Well, so let us start then. Okay, I have shared my screen with you. You can see. Okay. Yes. Cascading style sheets, CSS. Look at this now. Well, uh, we have come to know about many things. So let us go through the book once again. I mean, we need to have the theoretical knowledge also. Though we have practiced, I have practiced. मैंने तो कई बार प्रैक्टिस किया CSS में, लेकिन मेरे बच्चों ने नहीं किया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा. आई होप आप लोग करोगे. Methods of applying CSS, this is very important, very important rather I should say. Methods of applying CSS, ठीक है. Inline, internal or embedded, and the third one external. Okay, so according to you, which method is more effective? What do you say? Either external style sheet, or embedded, or inline? एंड थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया करो. तुम लोग ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे तो कैसे लगेगा? यस, विरम, तुमको क्या लगता है? विच वन इज मोर इफेक्टिव? एक्सटर्नल. थोड़ा लाउड बोलो बेटा. एक्सटर्नल. ओके, विरम इज सेइंग एक्सटर्नल. यस, व्हाट अबाउट यू गाइस, दोज हु आर सिटिंग there? Yes, Ayush, Akshat, Darshan Lunia, Baradia, two Darshans are there. Maitri, Mili. Yes, Mili. I think Mili, you have tried CSS. Okay. Yes, sir. Mili Ranga is saying all methods. Sare methods. Sir, inline, I guess. Inline is more effective. And why do you think so? Sir, it's internal, I think. Yes, Mehul wants to say yes. Sir, external, because it is the most powerful and flexible. Nowadays, professionals are using that method. External. Yes. Yes, of course. When you have to create many web pages, more than 10 web pages suppose, and you want to apply the same formatting, at that time, of course, external style sheet will be the most effective. And when you need to prepare one or two web pages, at that time I don't think external style sheet will be effective. At that time embedded will be effective. Okay, so we can see that all methods are important, of course, but if you want to find out the most effective, so it depends on your वर्क. आपका काम क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मेथड आप यूज करो. ठीक है, प्रोफेशनल्स के लिए ऑफ कोर्स एक्सटर्नल यूज होता है. ठीक, तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमें कुछ कोडिंग को देख लेते हैं. ठीक है, ये भी हो गया था. फॉन्ट प्रॉपर्टीज, जो कि हम लोगों ने कई बार देखा, फिर भी एक बार देख ही लो एक झलक. फॉन्ट फैमिली, to change the font, and we know there are many fonts: Arial, Georgia, Times New Roman. ठीक है, font family is done. Here you can see the syntax. और इसमें क्या बताऊं, इसमें तो बहुत बार हो चुका है. I don't think मुझे कुछ बताना पड़ेगा. Next, font style. फॉन्ट स्टाइल में इटैलिक कर सकते हैं, अगर आपको याद होगा तो. यहाँ दिया गया है नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक. ठीक है, 3 टाइप के स्टाइल आप यूज कर सकते हो फॉन्ट स्टाइल में. ये भी यूज हो चुका है. फॉन्ट वेट से हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, है ना, बोल्डर लिख के. यहाँ पर दिया गया, सॉरी, सिंटेक्स दिया गया है यहाँ पर. ठीक है, तो ये सब चीज ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आप लोग एक बार गो थ्रू करना बुक से, क्योंकि थियोरेटिकल आंसर लिखना हो तो आपको फिर ये पढ़ना ही होगा ना. नहीं पढ़ोगे तो फिर बन नहीं पाएगा. नेक्स्ट, फॉन्ट साइज.
फॉन्ट साइज जो हमने यूज किया है वो पिक्सल वाला यूज किया है ना, 30 पिक्सल 20 पिक्सल जैसा भी हो। फॉन्ट साइज आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, एब्सोल्यूट साइज, रिलेटिव साइज, लेंथ, परसेंटेज, मतलब देयर आर 4 डिफरेंट कैटेगरीज टू अप्लाई फॉन्ट, ठीक है। अब वो कैटेगरीज क्या है, जैसे एक्स स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज, तो मतलब ये जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। एक्सेस स्मॉल मतलब बहुत छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, एकदम एक्सेस लार्ज मतलब सबसे बड़ा। तो ये आप यूज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली 50 पिक्सल लिख दो तो भी काम बन जाएगा, 50 पिक्सल, 40 पिक्सल, वॉट एवर यू वांट, ठीक है। आपके लिए जो कन्वीनियंट है आप यूज करो, ठीक है। तो फॉन्ट साइज बहुत स्मॉल करना है, एकदम छोटा सा करना है तो एक्सेस स्मॉल लिख दो, और एकदम बड़ा करना है तो एक्सेस लार्ज, उससे भी बड़ा करना है तो पिक्सल में आ जाओ, है ना। अब ये डायरेक्ट मतलब उसमें पी एक्स लिखना पड़ेगा, पी एक्सएल का पी एक्स लिखना पड़ेगा। और बाकी अगर आप लिखते हो तो मतलब जैसे एक्सेस स्मॉल लिखते हो तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, एक्स हाइफन स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर क्या है, थॉट फॉर द डे, क्या थॉट है, द मोर गुड विशेस एंड काइंड फीलिंग्स वी लीव फॉर, ठीक है, सो बाद में समझेंगे। हाँ, एक नया कुछ दिख रहा है यहाँ पर, फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट का काम क्या है, अब मैं कुछ लिखता हूँ स्क्रीन पे तो उससे समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरा कर्सर आ गया आगे। Okay, so I have written DHTML 3 times. So can you see the change? Of course, there is a change. फर्स्ट जो है सारे कैपिटल लेटर में है, सेकंड क्या है स्मॉल लेटर में है, और थर्ड क्या है फर्स्ट कैपिटल है और बाकी स्मॉल है, ठीक है। तो इंग्लिश इंग्लिश बोल रहा हूँ, कंप्यूटर के लैंग्वेज में से केस कहा जाता है, ठीक है। एमएस वर्ड में अगर आपको याद होगा, एमएस वर्ड में पढ़े होंगे सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, ठीक है। तो फॉन्ट वेरिएंट का काम क्या है, यहाँ दो टाइप के वेरिएंट होता है, एक होता है स्मॉल कैप्स और एक होता है नॉर्मल। तो ये काम क्या करता है, आपके वेब पेज के जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को वो कैपिटल में बदल देता है, ठीक है। तो इसमें दो अलग अलग क्यों है, फिर एक स्मॉल कैप्स एक नॉर्मल है, दोनों में कैपिटल होगा, लेकिन स्मॉल कैप्स और नॉर्मल में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि अगर आप इस पैराग्राफ को ध्यान से देखोगे, एकदम पूरे ध्यान से, तो आप ये पाओगे कि ये तो सब कैपिटल लेटर में ही है, लेकिन फर्स्ट लेटर जो है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा है, बोल्ड नहीं कह सकते उसको, मतलब लिटिल फॉन्ट साइज इज लार्ज, ठीक है। ओके, सो इफ यू वांट टू सी आउटपुट, मतलब प्रैक्टिकल आउटपुट, आई कैन शो यू, डोंट वरी, जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यस, ये मेरा HTML का फाइल फोल्डर है, HTML CSS, इससे मैं ओपन कर लेता हूँ, कोई भी एक फाइल पहले ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये तो पूरे कैपिटल लेटर में आ गया है, अब मैं इसे बदलूंगा, इसे स्मॉल कैप्स करूंगा फॉन्ट वेरिएंट के साथ, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसका आप आ जाओ इसके कोडिंग वाले पेज में, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ में नोटपैड, ठीक है, ये खुला हमारा कोडिंग। अब यहाँ पर स्टाइल टैब, यहाँ पर P है ना, हाँ, P को हो हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट वेरिएंट करेंगे, फॉन्ट हाइफन वेरिएंट, उसके बाद कोलन। अब इसको करते हैं, अच्छा पहले कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, पहले कुछ नहीं करते हैं, पहले देखो कि ये कुछ नहीं करने से क्या होता है, ठीक। कंट्रोल S कर दिया मैं, और ये हमारा पैराग्राफ है जो कि सेंटेंस केस में है, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, है ना। इसे सेव कर दो और वेब पेज में आके वो रिफ्रेश करो। तो जैसे आपने रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, यहाँ पर यू कैन सी द चेंज कि वो सब वापस सेंटेंस केस में आ गए, इसको सेंटेंस केस बोलते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑफ ईच सेंटेंस। अब मैं अगर इसको बदलता हूं, आ जाओ कोडिंग वाले पेज में आ जाओ, मेरा माउस पॉइंटर पे ध्यान देते रहना, मैं कहां कहां क्लिक कर रहा हूं। अब कोडिंग वाले पेज में आ गया हूं, मैं यहां फॉन्ट वेरिएंट में लिख देता हूं स्मॉल कैप्स, कैप्टन अमेरिका वाला कैप्स नहीं, यहां पर कैप मतलब कैपिटल,
ठीक है। अब मेरा ये जो पैराग्राफ है ये अभी फिलहाल देख लो बैकग्राउंड में दिख ही रहा है, पैराग्राफ अभी भी स्मॉल लेटर में ही है, मतलब सेंटेंस किस में है, मैंने यहाँ कर दिया स्मॉल कैप्स। अब क्या चेंज होता है ध्यान से देखना, इसे मैं सेव कर दिया कंट्रोल एस, वापस पीछे आ जाओ अपने वेब पेज में और यहाँ से करो रिफ्रेश। सो यू कैन सी दैट फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस सारे कैपिटल ही है, ध्यान से देखो कैपिटल तो सब है, लेकिन सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो इफ यू नीड दिस देन यू कैन अप्लाई। और एक है फॉन्ट वेरिएंट में नॉर्मल, तो नॉर्मल भी करके देखते हैं वो क्या होता है। न्यूज़पेपर में भी होता है ना कुछ एक लेटर स्टार्टिंग का हाँ वो ड्रॉप कैप बोलते हैं इसको, ये इसमें एक बार देखना पड़ेगा उसको। ओके सो फॉन्ट वेरिएंट मैंने नॉर्मल कर दिया, सेव कर दिया। अब वापस अपने वेब पेज में आके एक बार रिफ्रेश कर दो तो वापस से जो पहला वाला था वही वाला आ गया। ठीक, ये नॉर्मल है जिसे सेंटेंस केस भी कहते हैं। चलो ये हो गया अपना फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट के बाद क्या है, फॉन्ट वेरिएंट के बाद है यूजिंग फॉन्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या है, कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है। मैं एक बार तुम लोग को बता देता हूं। जैसे कि हम लोग स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है, एक डिजाइन को मैं ओपन कर लेता हूं, क्यों ओपन कर रहा हूं अभी समझा रहा हूं। अब जैसे यहां पर मान लो H2 के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, इसके बाद फॉन्ट स्टाइल, उसके बाद फॉन्ट वेट। तो हमने एक ही चीज को बार बार लिखा, वो चीज कौन सा है, फॉन्ट। वी हैव रिपीटेड फॉन्ट 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 फॉर एवरी फॉर्मेटिंग, बट दिस कैन बी ignored or escaped with the help of using font shorthand property। मतलब इसमें आपको फॉन्ट एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो सिंटैक्स एक एग्जांपल दिया गया है, पी फॉन्ट, उसके बाद बोल्ड स्मॉल कैप्स 0.5 EM ऑब्लिक 1.4 हेलिवेटिका, ये फॉन्ट का नाम है। एरियल भी फॉन्ट का नाम है, लुक्सिस सैंस सेरिफ। ठीक है, सब कुछ एक साथ हो गया। नेक्स्ट वाले में भी आप देख सकते हैं, यू कैन सी इनलाइन, ठीक है, ये इनलाइन का है। पी स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट इटैलिक स्मॉल कैप्स बॉर्डर 40px ऑब्लिक 2। अच्छा 40px ऑब्लिक 2 लिखने का मतलब 20 पिक्सल हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट 20 पिक्सल ही लिखे, जबरदस्ती का है 40px ऑब्लिक 2 लिखे। एरियल फॉन्ट का नाम हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई कर लो, घर पे बन जाएगा। इसके बाद आता है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इसको भी फटाफट देख लो, बहुत सिंपल सा आसान सा चीज है। एक है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइनमेंट में आप देख सकते हो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। नाउ टेल मी वन थिंग, इन माय वेब पेज व्हिच अलाइनमेंट इज दिस। अभी तुम लोग मत बोलना। यस, ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है ये कौन सा अलाइनमेंट, वेरी गुड, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। क्या बात है, शाबाश। एक ही आवाज आया, पता नहीं कौन है। अच्छा 2 लोग गायब भी हो गया क्लास से, अभी 17 लोग थे, अभी 15 हो गए। कौन गायब हुआ है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट को छोड़ के भी 3 और अलाइनमेंट है, राइट सेंटर जस्टिफाई। सो यू कैन यूज दिस एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज जस्टिफाई अलाइनमेंट, मतलब जस्टिफाई अलाइनमेंट में क्या होता है? सर उसमें अलाइन जस्टिफाई करना होगा, मतलब अगर सेंटर और लेफ्ट के बीच में लगाना है तो ऐसा कुछ भी ऐसा। ठीक है, वेल ट्राइड माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, जस्टिफाइड का चलो मैं तुमको दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ क्या होता है जस्टिफाइड। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू समथिंग, अभी बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। चलो मैं ये करने वाला हूँ कि इसका फॉन्ट साइज में पहले बढ़ाने वाला हूँ ताकि मेरा पैराग्राफ 2-4 लाइन में आ जाए, और क्यों आए उसका भी रीजन बताऊंगा। जस्ट मिनट, फॉन्ट साइज कर देते इसका 80 पिक्सल, काफी बड़ा हो गया। हाँ जस्टिफाई में दोनों तरफ से इक्वल। चलो कंट्रोल एस कर देते हैं और रिफ्रेश। अभी मैं रिफ्रेश किया और बाप रे काफी बड़ा फॉन्ट। हाँ, सो नाउ यू कैन सी देयर आर मेनी लाइंस एंड द लाइंस आर इक्वल फ्रॉम लेफ्ट साइड, बट इट इज नॉट, दीज लाइंस आर नॉट इक्वल फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि दोनों तरफ से बराबर हो जाए तब आप यूज करना जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट से बराबर, सॉरी अभी तो लेफ्ट अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट करोगे तो राइट साइड से भी इक्वल हो जाएगा, है ना।
सेंटर करोगे तो लाइन जो है पेज के बीचों बीच आ जाएगा। और मैं इसे अगर दोनों तरफ से इक्वल करना चाहता हूं, जो कि नॉर्मली स्टैंडर्ड कहा जाता है जिसको, उसके लिए जस्टिफाई बैटरी नहीं, वो ले लेगा, वो ऑटोमेटिक स्पेस बढ़ा के लेगा। ठीक है, तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक इट जस्टिफाइड अलाइनमेंट। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डू, बट आई डोंट हैव टू डू डांस। तो करना क्या है देख लो, हमको यहाँ लिखना पड़ेगा टेक्स्ट हाइफन अलाइन, सॉरी ALI होता है, ALIGN, अलाइन कोलन जस्टिफाई स्पेस। तो देखोगे, नहीं दोगे तो भी चल जाएगा। तो ये हमने कर दिया टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। और बैकग्राउंड में देख लो एक बार, अभी हमारा जो पैराग्राफ है वो कैसा दिख रहा है। अब जस्टिफाई कर दिया तो इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद इसको करो रिफ्रेश। तो एज यू क्लिक ऑन रिफ्रेश, सो यू कैन सी दैट द पैराग्राफ इज नाउ इक्वल फ्रॉम बोथ द साइड्स। दिस इज कॉल्ड जस्टिफाई अलाइनमेंट, याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। सर एक बार सेंटर करो ना। हाँ श्योर, श्योर करो ना, मतलब सेंटर कर देते हैं इसको। ये हो गया सेंटर, स्पेलिंग तो सही लग रहा है, Ctrl+S। अब आ जाओ अपने वेब पेज में और इसको करो रिफ्रेश। तो सेंटर अलाइनमेंट में क्या हो गया, लाइन जो है वो पेज अपने वेब पेज के बीचों बीच आ गया, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग है ना, एक साथ क्यों करोगे, एक पैराग्राफ में दोनों यूज करने का मतलब है नहीं। ठीक है, सो अलाइनमेंट समझ में आ गया। इसके बाद है टेक्स्ट इंडेंटेशन, ठीक है। टेक्स्ट इंडेंटेशन क्या है, इंडेंटेशन को पहले एक बार समझ लो। आई थिंक आप लोगों को शायद अंदाजा होना चाहिए कि व्हाट इज इंडेंटेशन। लेट मी शो यू व्हाट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। ओके, ये मैंने वर्ड ओपन किया है, क्यों ओपन किया है, ताकि आपको बता सकूं कि इंडेंटेशन क्या है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, ये पैराग्राफ को कॉपी करके मैं अपने वर्ड वाले फाइल में लेके आता हूँ। साइज काफी बड़ा है, आपको पता है कौन छोटा बड़ा करने का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Shift<< greater than। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस इज माय MS वर्ड फाइल। अच्छा, यहाँ पर ये जहां मेरा माउस पॉइंटर घूम रहा है, यू कैन सी देयर आर 2 ट्रायंगल शेप्स। अब मैं इसे अगर ड्रैग करके हटाता हूं तो होता क्या है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। अब देखो, यहां से मार्जिन है, ये जो इतना एरिया है ग्रे कलर का, वो मार्जिन है, मार्जिन अलग हो गया, ठीक है। मार्जिन से भी आप पैराग्राफ को आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन मार्जिन के बाहर जो चीज है वो प्रिंट होता है, मार्जिन के अंदर का चीज प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो कि इंडेंटेशन को तुम अंदर कर देते हो, सपोज यार मेरा माउस अभी कितना टाइम था, 10-17 तो हो गया, ठीक। तो यहाँ पर 3 इंडेंटेशन होता है। लेट मी टेल यू, देयर आर 3 इंडेंटेशन। ये इधर वाला इसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंटेशन। ये राइट साइड में भी एक है जिसको राइट इंडेंटेशन कहते हैं, ठीक है। और एक इंडेंटेशन है जिसको कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन। अब ध्यान से देखोगे तो जो लेफ्ट इंडेंटेशन है ना, उसके ऊपर एक छोटा सा और एक इंडेंटेशन है जिसको मूव करने से फर्स्ट लाइन, पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन आगे पीछे होता है। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन। तो ये जो फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन का काम मैं कर रहा हूं, ये आपका वेब पेज में भी पॉसिबल है, उसके लिए यूज होता है इंडेंटेशन। आपको लिखना क्या है, P के अंदर ही, पैराग्राफ में ही होता है ज्यादातर इंडेंटेशन। तो आपको लिखना है टेक्स्ट इंडेंट, उसके बाद जितना भी देना है 40 पिक्सल या 40% में भी देख सकते हैं, पिक्सल में भी दे सकते हैं। तो चलो एक बार देख के देते हैं। कुछ नहीं करना, हमको यहाँ बस आना है और यहाँ हमको आके लिखना है टेक्स्ट हाइफन इंडेंट, करेक्ट, इंडेंट कोलन 40%, परसेंट में देखिए पिक्सल में देके देखते हैं पहले। चलो 70 पिक्सल कर देते हैं अभी फिलहाल। और ये हमारा कोडिंग डन। हाँ, सेव करेंगे, पहले एक बार दिखा देते हैं। अच्छा, मैं इसको पहले एक बार जस्टिफाई कर लेता हूँ, ठीक है।
टेक्स्ट अलाइन को जस्टिफाई कर देता हूं ताकि आपको इंडेंटेशन का मतलब समझ में आ जाए। जस्टिफाई कर दिया हूं, कंट्रोल एस, कंट्रोल सेव हो गया। अब अपने वेब पेज में आ जाओ, आके यहाँ से रिफ्रेश करो तो यू कैन सी दैट फर्स्ट लाइन के पहले, आई एम लर्निंग के पहले थोड़ा सा गैप है, इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, आप बढ़ा भी सकते हो। हाँ, इसको 100 पिक्सल कर देते हैं, नहीं 500 पिक्सल कर देते हैं तो एकदम लगभग बीच में आ जाएगा लाइन। कंट्रोल एस, अब आ जाओ अपने वेब पेज में और यहाँ से करो रिफ्रेश, तो यू कैन सी, तो दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। बहुत सिंपल है ये सब। कलर हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है, कलर चेंज करने के लिए। टेक्स्ट डेकोरेशन, अरे वाह क्या बात। अब ये टेक्स्ट को डेकोरेशन भी कर सकते हैं। ये डेकोरेशन वाला जो है इंडेंट को लेफ्ट और राइट में नहीं कर सकते, जैसे वर्ड में देखिए ऐसे। नहीं, इसमें एक ही है फिलहाल। ठीक, बाकी क्या है ना, देखो अभी वेब पेज बनाने के लिए PHP का ज़्यादा यूज होता है। PHP में तो क्या है, तुम जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। ठीक है, अगर कंप्यूटर में जाना है IT फील्ड में, तो IT फील्ड में तो बहुत सारे ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इधर तुम्हारा नेटवर्किंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट डेकोरेशन को देख सकते हो, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, ब्लिंक, नन। अब ये क्या है, चलो एक बार इसका यूज करके देखते हैं। ठीक है, सो हम लोग यूज करेंगे अंडरलाइन, P टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, और अंडरलाइन के बाद हम लोग यूज करेंगे ओवरलाइन। तो देखो अंडरलाइन और ओवरलाइन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ बाकी सब है कि नहीं। हाँ भाई, आयुष, अक्षर, दर्शन, एक बार आवाज दो। यस सर। मैत्री, मिली, कहाँ भाई, मैत्री दागा, मिली रंका, लोग है कि नहीं है? यस सर। यस सर। है। चलो, और कौन, मोक्ष, MJ, क्या बात है MJ, माइकल, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मोक्ष, मौलिक, टाइम ओवर होने वाला, 10 मिनट है। चलो अभी हम लोग Yes, sir. क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद अपना 2-4 चीज और है उसको देख के खत्म कर देंगे आज का क्लास। डेकोरेशन में क्या होता है, जैसे अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हो अपने पैराग्राफ को, तो आप लिखो टेक्स्ट डेकोरेशन, उसके बाद कोलन, अच्छा टेक्स्ट वैल्यू होगा ना, डेकोरेशन नहीं होगा, है टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ठीक, सही तो कर रहे थे। चलो, टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको कर देते हैं अंडरलाइन। ओवरलाइन भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। पहले अंडरलाइन कर, नन में कुछ नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ तो देखो अंडरलाइन हो गया। अब ये ओवरलाइन करोगे तो वो ऊपर में आ जाएगा, ये अंडर के जगह आप कर दो ओवर, दो बार हो गया, ओवरलाइन हो गया। अब यहाँ से रिफ्रेश करो तो वो लाइन ऊपर आ जाएगा। और अगर आपको कोई सर जैसे किसी एक वर्ड को अंडरलाइन करना है तो हाँ बेटा, एक वर्ड को अंडरलाइन करना है तो CSS में बेटा अभी जब हम लोग P को ले रहे हैं ना, तो P मतलब पूरा पैराग्राफ, ठीक है, पूरा पैराग्राफ, तो इसीलिए वहां वो अंडरलाइन नहीं हो पाएगा। अगर आप कोई एक वर्ड को करना चाहते हो तो CSS से मत करो, उसको नॉर्मली करो। नॉर्मली इन द सेंस, जैसे मान लो कि यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से हटा दिया, और सपोज माय मदर को अंडरलाइन करना है तो हम लोग एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। यहाँ यू लिख के माय मदर के बाद यू को क्लोज कर दो, तो इसे सेव कर दो। अभी सेव करने के बाद आ जाएगा, रिफ्रेश करके देखते हैं तो काम हो गया आपका। तो कोई एक वर्ड को करना है तो आप पर्टिकुलर उस वर्ड के आगे पहले जाके लिख दो, ठीक है बेटा। यस सर। CSS में मत करो, CSS में वैसा ऑप्शन नहीं दिया है अभी। ओके, नेक्स्ट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या है, ये बहुत बढ़िया चीज है। इसमें आप अपने पैराग्राफ को कैपिटल लेटर में कर सकते हो, स्मॉल लेटर में कर सकते हो। मतलब अभी तो फिलहाल हमारा पैराग्राफ जो है वो स्मॉल लेटर में ही है,
तो अगर पूरा कैपिटल लेटर में करना है तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज कर सकते हो। ठीक है, एक बार देख लो सिंटैक्स क्या है, बहुत सिंपल है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, या फिर यू कैन राइट अपर केस, दोनों में कोई एक लिख सकते हो। लोअर केस में एकदम स्मॉल लेटर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये इसका प्रैक्टिकल जरूरी है कि समझ गए? सर एक बार कर ले क्या? चलो कोई बात नहीं। सो यहाँ पर आप लिख दो टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म कॉलन कैपिटलाइज। चलो अपर केस लिख के देखते हैं ना, अपर केस। ठीक है, सही है। कंट्रोल एस। अरे भगवान, आज आपने वेब पेज में यहाँ से करो रिफ्रेश तो देखो सब के सब कैपिटल लेटर हो गया। तो इट डजंट मैटर आपके कोडिंग वाले पेज में पैराग्राफ कौन से केस में है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता स्मॉल लेटर में कैपिटल लेटर में, आप यहाँ से फिर इसे दोबारा चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोडिंग वाले पेज से एक बार कैपिटलाइज करके देखते हैं क्या होता है। CAP कैपिटलाइज, सही है स्पेलिंग? चलो इसे सेव मारो। अब आ जाओ अपने वेब पेज में, एक बार रिफ्रेश करके देखो। हाँ, कैपिटलाइज में क्या हो रहा है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। ठीक है, तो ये एक नया टाइप का कुछ दिख रहा है हमको। यू कैन सी द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड इज कैपिटल। और तीसरा क्या है ट्रांसफॉर्मेशन में? लोअर केस में स्मॉल लेटर में हो जाएगा, सब कुछ स्मॉल। चलो ये तो समझ में आ गया। अच्छा यहाँ बुक में दिया भी था, कोई बात नहीं। आगे लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या है बस देख लो, बहुत सिंपल है। अभी ये जो लाइन मैंने लिखा है यहाँ पर कितना लाइन दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। So there are 7 lines and if you want to increase the space between line, ठीक है, लाइनों के बीच में जो स्पेस है उसको बढ़ाना है तो एट दैट टाइम यू कैन यूज लाइन हाइट। ठीक है, तो चलो लाइन हाइट हम लोग बढ़ा देते हैं। तो हमको क्या लिखना है? लाइन हाइफन हाइट, उसके बाद 100%। हाँ मतलब कितना कितना बढ़ाना है आपको, उसके लिए आप देख लो कई सारे। हाँ, आप परसेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज पिक्सल, यू कैन यूज ऑल्सो जैसे यहाँ 3 लिखा है ना, 3 का मतलब होता है 3 लाइन। लाइन हाइट 3 का मतलब 2 लाइन के बीच में 3 लाइन का गैप आ जाएगा। तो अब पहले हम लोग क्या करें? पहले हम लोग नंबर वाला यूज करें, 2 लाइन कर देगा ताकि दिखेगा कम से कम। सो यहाँ पर 2 लिख दिया हम लोग, लाइन हाइट 2 एंड लेट अस सी कि हमारे वेब पेज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एज आई हैव रिफ्रेश्ड यू कैन सी कि 2 लाइन के बीच में काफी गैप आ गया। अगर इसको मैं कर देता हूँ 4 तो और भी गैप बढ़ जाएगा। फिर रिफ्रेश, अरे बाप रे ये तो बहुत ज्यादा गैप हो गया, मजा नहीं आ रहा है। इसको पिक्सल में करते हैं, 1 में थोड़ा सा दिखेगा। 60 पिक्सल कर दिया हूं मैं। अब इसे रिफ्रेश, वाह क्या बात है, कौन पढ़ेगा इसको? 60 पिक्सल में बहुत बेकार सा हो गया। 200 पिक्सल करके देखते हैं, कंट्रोल एस और यहाँ पे रिफ्रेश करो। 200 में तो कहाँ चला गया? तो आई थिंक 2 ही ठीक है, क्या बोलते हैं? परसेंट में भी है, एक मिनट देखते हैं 200% करके क्या होगा। ठीक है, 2% ये है 200% में। ठीक है, अब यहाँ सर 2 लाइन इज इक्वल टू 200%। हाँ, तो इसको हम लोग वापस अगर 1 कर देंगे तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? यस सर, नहीं होगा तो वाह, सच में नहीं? नहीं होगा। हाय हाय क्या बात है। इसको 2 कर देते हैं, कंट्रोल एस रिफ्रेश। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हाइट। वर्ड स्पेसिंग, जैसे लाइन स्पेसिंग होता है वैसे वर्ड स्पेसिंग होता है। अगर आपको लगता है कि जो ये वर्ड्स है बहुत कंजस्टेड लग रहा है, लर्निंग कंप्यूटर्स, अगर वो कंजस्टेड लग रहा है तो आप उसका स्पेस बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा वर्ड स्पेसिंग, है ना? बताओ क्या है? वर्ड हाइफन स्पेसिंग। अरे कीबोर्ड कैसा है? 10 पिक्सल कर देते हैं।
क्योंकि दिखेगा, मतलब उसमें क्या दिखेगा, चेंजेस दिखेगा। 10 पिक्सल कर दिया मैंने वर्ड स्पेसिंग। अब आ जाओ अपने वेब पेज में और यहाँ से करो रिफ्रेश। कुछ पता चला? पता चला, लेकिन बहुत कम हुआ, तो इसको चलो 100 पिक्सल कर देते हैं, तो अभी हमको चेंज समझ में आएगा। आई और एम के बीच में देखना कितना गैप बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, देखा आई और एम के बीच में कितना, तो फिल इन द ब्लैंक हो गया, विरम का कहना है, सच में। ठीक है, तो ये सब हमारा जो है, ये तो खेल खेल में मजा ले लिए। चलो इसके बाद अब बचा रहेगा बस बैकग्राउंड वाला। ये बैकग्राउंड हो जाएगा तो अपना CSS कंप्लीट। ठीक है, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक काम देता हूँ। सर ये वर्ड के बीच में स्पेस कैसे लाए? हाँ बेटा, वर्ड्स के बीच में अभी जो स्पेस लाए वो कहाँ से लाए? ये आपका उसका नाम है वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, ये वाला वर्ड। यस सर। ठीक है, एक बार कोड भी देख लो, ये उसका कोडिंग है, वर्ड स्पेसिंग कोलन 100 पिक्सल। तो आप 100 तो बहुत ज्यादा हो गया, हम लोग इसको 50 पिक्सल कर देते हैं, तो आधा हो जाएगा। अब आ जाओ वेब पेज में और यहाँ से करो रिफ्रेश। ठीक है बेटा, समझ में आया? और अगर आप इसको हटा देते हो तो जो बाय डिफॉल्ट है उतना ही रहेगा। चलो मैं इसको हटा दिया, तो बाय डिफॉल्ट जितना है उतना आएगा, ये इसका बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, चलो टाइम अभी ओवर होने वाला है, एक्चुअली हो गया ओवर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, व्हाट आई वाज टेलिंग, एक बार आप लोग बैकग्राउंड को पढ़ना घर पे, और कल थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना कि आप लोगों ने क्या क्या समझा बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज में। ठीक है, एक है बैकग्राउंड कलर, फिर बैकग्राउंड इमेज, फिर आपका बैकग्राउंड रिपीट भी है, उसके बाद बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इसको छोड़ दो, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को, आप बस ये रिपीट, इमेज और कलर, इन तीनों को पढ़ लेना। ठीक है, और यही लास्ट है CSS का। अच्छा, बॉर्डर प्रॉपर्टीज भी है, चलो इसको खत्म करना पड़ेगा, और एक क्लास में ये खत्म हो जाएगा।